HIV is an infection and AIDS is a full-blown illness. HIV is one when you encounter the virus which enters your body, which could be due to a syringe, a blood product, homosexual or a heterosexual contact. AIDS means that your immunity has basically shut down. Now that shutdown has got different levels, which will depend on the basic investigations we do for patients. Not all people with HIV infection will go on to develop AIDS, and because it depends on what immunity status you have. Now the current generation is exposed to nearly everything which is available in the whole universe. देखिए, जैसे मैंने कहा, ये क्रॉनिक बीमारी है, यानी ऑनगोइंग बीमारी है, तो इसलिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की रिक्वायरमेंट तो लाइफ लॉन्ग होती है। इसको जल्दी स्टार्ट करने का पर्पस ये होता है ताकि हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकें। HIV एड्स से डरे नहीं, जागरूक बने, लोगों को एक दूसरे को समझाएं। Dr. Sharad Malhotra, even after years of campaign, India still sees a steady number of new HIV cases annually. What do you think is the biggest reason we haven't been able to flatten the curve? Good morning, and thank you so much for giving me this opportunity to talk about HIV AIDS in India on this current World AIDS Day. The most important thing is that there is a lot of inhibition still to talk about HIV AIDS. That has prevented people to go for preventive testing. Even those people who have a suspicion of getting exposed run away from testing just because they are worried. The stigma has reduced but has not gone away totally. And with the size of population which we have, it is always going to be a challenge because new numbers we keep on creeping. The good thing over the years is that better medications have come. Early detection is possible. HIV or AIDS rather now is considered to be a chronic disease. However, stigma is more psychological. So till the time our information, education, counseling sessions are not increased, we are not able to target the populations where these diseases are more common, the numbers will steadily go on increasing because of the sheer number of the population which we have. Okay, we have crossed 2.5 million in India, the HIV AIDS cases. What is the reason behind it? See, again, as I said, it is the sheer number which is causing. So, you see, the perspective would be thought of in the total amount of population which we have. Now, who is spreading AIDS? The HIV is not getting spread because of unclean blood practices. Most of the cases which now are coming up are through injection abuse. Okay. Sharing of syringes, Sterilization abuse, sterilization problems. Right. Then homosexual as well as heterosexual contacts. Okay. And most of the times in the patients who have come to us, it is just that the awareness is not there that a particular person who has got HIV or who has got AIDS, if he takes care of his own self, practices barrier contraception, even that person can help in breaking the chain. Okay. Again, we come to the same fact, if information and education is widespread, both this injection misuse or the drug abuse problem which we have, as well as the homo and the heterosexual abuse, this line has to be stopped. The mother to child transmission is very less now. The blood induced transmission or blood product transmission is much less now. The dialysis machines, where sometimes it used to be a problem, has significantly reduced because of the fact that people have been extremely careful in maintaining the hygiene for these machines, and the answers are there, the numbers to be seen. Okay. The two places where we need to really target is places where we are having the drug abuse practices with injection sharing, and the other places where we are having the sexual relationship or homo or heterosexual relation, which are one of the major causes of transmission, still prevalent. People in India still are not exactly aware of what is the difference between HIV and AIDS. What is the difference between HIV and AIDS? The most important thing to differentiate it is that HIV is an infection and AIDS is a full-blown illness. HIV is one when you encounter the virus which enters your body, which could be due to a syringe, which could be due to a blood product, which could be due to a homosexual or a heterosexual contact. That is when the person gets the HIV infection. AIDS is where then the disease is well blown out. So AIDS is not a single system disease. AIDS means that your immunity has basically shut down. Now that shutdown has got different levels, which will depend on the basic investigations we do for patients. So infection to disease
is the chain which we need to find out early and break. So if somebody gets exposed to a virus today and say 6 weeks later turns out to be HIV positive, at that point of time he does not have AIDS. But subsequently, in a few months down the line, when his immunity will start coming down and the different type of illnesses will start taking over, that is the stage when we call it AIDS. Okay, is it necessary if somebody is infected with HIV and will he have AIDS? Not all people with HIV infection will go on to develop AIDS, and because it depends on what immunity status you have. There are many examples where people have remained HIV positive for a long period of time without developing AIDS. However, the current recommendation is to find these people early and treat them early so that their immunity levels can be well maintained and we prevent any chronic complication of AIDS to develop. As I said, it is much better to treat HIV AIDS these days, and we have been able to transform it from a near fatal illness to a chronic illness, something like metabolic diseases like diabetes or blood pressure and things like that. And many patients of ours have actually lived more than 2 decades Okay. just on the good medications which we have presently. Okay. Is the present scenario like air pollution got anything to do with HIV/AIDS? No. Air pollution per se brings down your immunity, Right. which is more related to your respiratory illnesses because of the very simple fact that it is directly transmitted to your respiratory tract. It will also, since any illness which affects you will bring down your immunity, so it will have a indirect relationship. But if you ask me directly whether pollution has an effect on HIV/AIDS, the answer is currently no. Okay, do you feel the public health system is adequately equipped for HIV prevention and long-term treatment? Where do you see the biggest gaps? See, the most important thing is the government has actively taken measures in this direction. Not only the Ministry of Health and Family Welfare, NACO, and other societies have actively campaigned for this. However, the problem remains is that the idea of stigma and the dogma associated with HIV/AIDS is the biggest prevention. So even if we are going today, if in my hospital, if someone comes with HIV/AIDS, everyone will start to shrink away a little bit away from that. This is the threat. This is the fear which we need to eradicate. We have to tell the people and scientifically tell the people that the HIV/AIDS is just a chronic viral illness like hepatitis B or hepatitis C and things like that. If you sit down next to someone, it is not going to get communicated. If you touch someone, it is not going to get communicated. So the biggest gaps actually lie in the information and education. Now it would be very useful if you could define these things, going to many people living in the interiors of the country also. If we could involve some religious leaders also along, because in our country religion remains a very strong motivator Right. of taking a positive and corrective action. Okay. So school-based programs are Right. essential because At the early once stages. catch them young, Yeah. teach them young, and they will grow out to be better individuals with better outcomes. Right. So I think these are the 3 things which I think are going to be more relevant for improving the groundwork for HIV/AIDS awareness. Related question: youth behavior has changed dramatically with dating apps and social media. Are young people more vulnerable today due to misinformation and risky behavior? You're absolutely right, sir, because of the very simple fact that now the current generation is exposed to nearly everything which is available in the whole universe. A lot of them of the information is good, and a lot of that information is quite bad. Family structures have broken down, so there is a lot of reliance on friends and relationships outside the conventional society-based relationships. So these children have to be educated. You will not be able to take them away from indulging into unsafe sexual practices. What you actually have to tell them is how safe they can, or how they can guarantee their own safety, even if they are indulging into a relationship. It is something like akin to when we were trying to tell to people that you stop alcohol. They will not stop alcohol. So the idea is to create responsible drinking. So similarly, if you are able to create a responsible and safe environment and safe education for their behavior, which could be
a unigamous or a multigamous relationship, at least we will be able to break the chain of a person who's might end up transmitting HIV/AIDS or might end up getting HIV. So, do you think the dating apps are somewhere related, are harming these young people? Sir, I don't think that the dating apps is the problem. The problem is that the current society does not have spaces where people interact with each other, or rather, I would say that there's no safe space for them to coordinate and mingle with each other. तो HIV के प्रमुख कारण या तरीके क्या हैं? लोग आज भी किन गलतफहमियों के कारण संक्रमित होने से बच नहीं पाते हैं? देखिए, आज भी अगर हम बात करते हैं कि जो नए केसेस आ रहे हैं, जो प्रदूषित सुइयों के इस्तेमाल के रास्ते हो रहे हैं, जी। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये वही लोग होते हैं जो कि नसों के रास्ते किसी भी नशे को इंजेक्ट कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब ये सुइयों को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है तो सिर्फ HIV/AIDS नहीं, बहुत सारी और बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी साथ में ही फैल जाता है। दूसरा जो तरीका है जो कॉमन होता है आफ्टर जो इन सुइयों के बाद में आता है, वो आदमी और औरत, औरत और आदमी का जो रिलेशनशिप आपस में होता है, तो सेक्सुअल रूट जो होता है वो दूसरा कॉमन तरीका है। जो पहले होने वाले थे, जिस प्रकार के ब्लड बैंक के रास्ते से फैलते थे कि आपको संक्रमित खून चढ़ गया, डायलिसिस की मशीन से हुआ, इन सब चीज़ों में काफ़ी फर्क आ गया है। जो करंट जो अधिकतर ऑपरेशंस वगैरह जहाँ पे होते हैं, जहाँ खून और खून से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिसेस की वजह से इस नंबर को, इस मात्रा को काफ़ी कम कर दिया गया है। तो वो फायदा है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस जगह पे ये नशा हो रहा है, जहाँ सुइयाँ यूज़ हो रही हैं, तो उस जगह पे जाकर के एजुकेशन देने की ज़रूरत है। यदि इस समय पे सरकार इस बारे में बहुत कोशिश भी कर रही है और इस मामले में यहाँ तक कि सुइयाँ तक प्रोवाइड करी जाती हैं इन नशा करने वालों को, ताकि कम से कम उनका जो बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ ना जाए। और बचपन से ही यदि हम इन लोगों को, जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं और युवा हैं, यदि हम बचपन से ही उनको इस बारे में सिखाते हैं कि ये सारी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है या इनकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा है, संक्रमण बढ़ने का खतरा है, तो उसको हम रोकने में काफी मदद पाएंगे। क्या इंडिया में अभी भी HIV टेस्ट कराने को लेकर झिझक और डर मौजूद है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत ज्यादा, बीमारी से ज्यादा बीमारी का डर बड़ा होता है। और यही चीज जब कभी भी हमारे HIV/AIDS का होता है तो उससे पहले हमारे यहाँ पे एक प्री टेस्ट काउंसलिंग की जाती है, जिसका अर्थ ये होता है कि हम उसको बता रहे होते हैं कि हम इस जांच को क्यों कर रहे हैं। जांच करने का मतलब दो तरह से होता है। नंबर एक, इंसान की अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरा, यदि अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जा रहे हो तो उसकी और सिस्टम की सेफ्टी के लिए। ये एक फायदेमंद चीज भी हो सकती है, क्योंकि हम किसी भी बीमारी को, जिसको इंसान को कोई ज्ञान नहीं है, उसको आप जल्दी पकड़ सकते हो। डर सिर्फ इंसान के मन में यही होता, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो वो डर इस वजह से है क्योंकि सबको लगता है कि HIV/AIDS हुआ और जीवन खत्म है। और ये हम बात आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि HIV/AIDS के साथ में ऐसा कोई डर नहीं है। आज हमने इसको एक लंबे समय की क्रॉनिक बीमारी की तरह बना दिया है अच्छी दवाइयों से। जिस प्रकार आप अपनी शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट का इलाज करते हैं, उसी प्रकार से आज दवाइयां हैं जो कि इंसान को 20 साल, 25 साल, 30 साल जिंदा रखने की क्षमता रखते हैं, और एक अच्छी जीवन शैली के साथ। HIV का इलाज कहाँ तक पहुंच चुका है? क्या यह सही है कि आजकल मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं? आपने बिल्कुल कहा, मरीज का जीवन बिल्कुल सामान्य होता है। और अगर आप हमारे मरीजों से मिलेंगे, क्योंकि हम कोई केस स्टडी बता सकते हैं जहां पे इनसाइट ऑफ दिस? सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी हमारा था कि हमारे यहाँ पे एक यंग लड़का आता था जो कि HIV पॉजिटिव था, और वो बॉम्बे में एक इंजीनियर का काम करते थे। वहीं पे ही एक पर्टिकुलर जगह से उनको HIV मिला, और जब उनको पता चला वो काफ़ी डिप्रेस थे, काफ़ी परेशान थे, लेकिन ऑन ट्रीटमेंट वो आकर के धीरे धीरे अपनी नॉर्मल जीवन शैली पे वापस आ गए हैं। वो अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। 3-3.5 साल पहले अभी उनका विवाह एक दूसरे HIV पॉजिटिव मरीज के साथ हुआ है, और अभी लास्ट ईयर उनको जो बेबी पैदा हुआ है वो HIV नेगेटिव। तो इससे अच्छा कोई हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है। और इस तरह की सिर्फ हमारे पास अगर 1 या 2 केसेस हैं, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे केसेस हैं। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में जहाँ पे इतना सारा इंटरनेट का सुविधा उपलब्ध है, यहाँ तक कि HIV पॉजिटिव लोगों के लिए
ऐसी वेबसाइट्स बन गई हैं कि वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। तो संक्षेप में ये कहना चाहिए कि नॉर्मल जीवन शैली अपनाई जा सकती है, नॉर्मल जीवन बिताया जा सकता है और एक लंबी बीमारी की तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। अभी एचआईवी का खत्म करने वाला इलाज नहीं आया है, क्योंकि एक क्रॉनिक किस्म की बीमारी होती है जो आपके शरीर के टिश्यूज में बैठ जाती है जाके। तो फिलहाल इसके लिए कंट्रोल संभव है, लेकिन वो कंट्रोल बहुत अच्छा संभव है। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जैसे एड्स किसी महिला को हो गया और उसकी शादी होगी और वो प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे में एड्स होने की कितनी संभावना है? जो हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो प्रेगनेंसी के लिए भी सेफ दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो यदि प्रेगनेंसी के समय पे लड़की को उस जिस लेवल की दवाई को दिया जाता है उससे 99% तक आप इस ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी बात है। एक समय पे तो इस बात का ही डर होता था, यहाँ तक कि कुछ वेस्टर्न कंसेप्ट तो ये भी है कि नॉर्मल डिलीवरी भी संभव है उसके, ऑल्दो अधिकतर उसको सिजेरियन सेक्शन किया जाता है ताकि ट्रांसमिशन को माँ से बच्चे को जन्म को जितना मिनिमाइज किया जा सके उतना किया जा सके। लेकिन आज ये बात को कहना बहुत आराम से संभव है कि हम 99% तक माँ से बच्चे को आने वाले एचआईवी को रोक सकते हैं। सर, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कितनी प्रभावी है? कितने समय तक लगातार लेनी होती है? देखिए, जैसे मैंने कहा ये क्रॉनिक बीमारी है यानी ऑनगोइंग बीमारी है, तो इसलिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की रिक्वायरमेंट तो लाइफ लॉन्ग होती है। अर्ली स्टार्ट करने का, इसको जल्दी स्टार्ट करने का पर्पस ये होता है ताकि हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकें, यानी एचआईवी इन्फेक्शन को पूरे फुल ब्लोन एड्स में बदलने में रोक सकें। और ये बेस्ट तरीका होता है आपकी इम्यूनिटी को बेहतर रखने का। हमारे पास कई लेवल्स की दवाइयां हैं जिसको फर्स्ट लाइन मेडिकेशन, सेकेंड लाइन मेडिकेशन के नाम से जाता है। कई कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके अंदर जो यूज़ किए जाते हैं, जो जांच के आधार पे डिसाइड किया जाता है। लेकिन बहुत अच्छी और इफेक्टिव दवाइयां हैं। भारत सरकार की मदद से एंटी रेट्रोवायरल क्लिनिक्स के अंदर ये दवाइयों को मुफ्त भी उपलब्ध किया जाता है। इवन सेकेंड जनरेशन मेडिकेशन भी वहाँ मिल जाती हैं। कभी कभी हम लोग भी उनसे इंटरैक्ट करके कोशिश करते हैं कि हमारे मरीजों को उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, और इसमें वो लोग भी हमारी मदद करें। सर, अक्सर कहा जाता है कि एचआईवी अब कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता। क्या कोई इलाज या वैक्सीन आने की उम्मीद है? देखिए, एड्स का जो एचआईवी का वैक्सीन है उसको डेवलप करके फेज 3 में लाया गया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वैक्सीन उसी इंसान को दिया जाता है जिसको वो बीमारी ना हो। तो वैक्सीन तभी काम करती है जब इंसान को बीमारी ना हो। इलाज की बात करें तो अच्छा इफेक्टिव इलाज है। यदि आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, ऐसे केसेस कई जगह पे रिपोर्टेड है जहाँ पे एचआईवी की वैल्यूज नेगेटिव हो गई हैं, लेकिन वो केसेस का नंबर छोटा है। तो इसलिए फिलहाल के समय पे, आज के समय पे जो साइंस बेहतर मदद कर सकती है वो ये कर सकती है कि एक क्रॉनिक इलनेस की तरह, एक लंबी बीमारी की तरह आपकी मदद कर सकती है। सरकारी स्तर पर एचआईवी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या ये पर्याप्त है? देखिए, कभी भी एक बीमारी के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से अच्छी पहल करी है, मैको ने अपनी तरफ से अच्छी पहल की है, बहुत सारे एनजीओज इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटीज इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या ये पूरा है? शायद उसका आंसर आज के समय पे नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज भी केसेस हैं। आज भी ऐसा होता है कि डायग्नोस्टिक्स के लिए, जांच कराने के लिए इंसान के पास पैसा नहीं है। आज भी अगर सेकेंड लाइन थेरेपी पे वो जाना चाहता है तो लिमिटेशन है, कभी कभी दवाई मिलने में दिक्कत है, कभी दवाई खरीदने में दिक्कत है। तो बहुत कुछ है कवर करने के लिए, पर सबसे ज्यादा जरूरी प्रिवेंशन है। और उसके लिए जितना भी हमारे एजुकेशन के जितने कैंपेन्स होंगे, जितना ज्यादा इस बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, उतना ज्यादा बेहतर हमारा लंबे समय का आने वाला देश का फ्यूचर होगा। अगर हम लोगों को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो जल्दी इलाज करना है, सही इलाज करना है और इस साइकिल को आगे बढ़ने से रोकना है। अगेन इसके लिए जागरूकता की ही रिक्वायरमेंट। डॉक्टर शरद, एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति की मानसिक चुनौतियां किन चुनौतियों से गुजरता है? समाज में अभी भी कितना स्टिग्मा है? देखिए, समाज में आज भी बहुत स्टिग्मा है, और वो इस वजह से है बिकॉज कि हम बीमारी को आज भी नहीं समझना चाहते हैं। ये बात 1990s से जब ये स्टार्ट हुई थी, उस समय पे बात अलग थी, क्योंकि ना तो हमारे पास जांच करने के तरीके थे, ना हमारे पास दवाइयाँ थी। जब तक हमारे पास में एचआईवी पेशेंट आते थे फुल ब्लोन एड्स में होते थे, तो बीमारी बढ़ चुकी होती थी, इसलिए उसकी भयावह स्थिति दिखती थी। जगह जगह पे ऐसा माना गया था कि अरे एड्स आ गया, अब तो जीवन खत्म है।
एक तो ये इंसान को जब आज भी किसी के इंसान को जब पॉजिटिविटी होती है तो सबसे पहला उसके मन में डर यही बैठता है। उन सब के बावजूद भी हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ बदल चुकी है। तो जब हमारी प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है जांच के समय पे, और जांच को हमेशा, जैसे आप सब जानते ही हैं कि एचआईवी की जांच को एक रिपोर्ट के साथ कभी भी पॉजिटिव नहीं माना जाता, उसको रीचेक किया जाता है, उसमें बड़ी जांचें की जाती हैं और तब दवाई देने की बात आती है। तो इन सारे लोगों को ये बहुत तरीके से समझाना ज़रूरी होता है। नंबर 2, उनको बताना ज़रूरी होता है कि आपकी जांच के बाद दवाई देने से आपकी सेहत वैसी ही रहेगी, आप वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे आप पहले काम किया करते थे। दवाई के मामले में अगर उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम जो भारत सरकार के चलाए हुए एआरटी क्लिनिक्स हैं उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश भी करते हैं और वहाँ से भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। वहाँ काउंसलर्स भी होते हैं, हमारे यहाँ पे भी काउंसलर्स हैं जो उनको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। उनको किसी तरह का फर्क ना हो इसलिए हम जब ओपीडी के समय में बुलाते हैं, हमने उनके लिए कोई सेपरेट ओपीडी नहीं रखी है, हम सेम ओपीडी के अंदर देखते हैं। और किसी भी जगह पे, अधिकतर अच्छे अस्पतालों के अंदर किसी प्रकार का ऐसा कोई मार्क नहीं लगा होता जिससे कि एक मरीज से दूसरे मरीज का फर्क जाया जा सके। अच्छा, आम लोगों के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है जिससे एचआईवी रोकथाम और जागरूकता बढ़ सके? वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर सबसे जरूरी जो संदेश है वो यही है, एचआईवी एड्स से डरे नहीं, जागरूक बने, लोगों को एक दूसरे को समझाएं। यदि गलती से कोई इंसान, आपका दोस्त, आपका भाई, कोई आपका रिश्तेदार इस बीमारी से ग्रसित है, उसको सही डायरेक्शन दिखाएं, सही लोगों से मिलने की सलाह दें, इसको क्रॉनिक बीमारी की तरह रखें। और हमेशा याद रखें, यदि आप किसी की मदद करते हैं, किसी को प्यार देते हैं, तो उससे ये चीज़ जल्दी कंट्रोल करी जा सकती है, बेहतर बनाई जा सकती है। हमेशा देखा गया है, एचआईवी एड्स ही नहीं, किसी भी क्रॉनिक बीमारी के अंदर अगर आपका परिवार का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आपके दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो उस बीमारी के जो आउटकम है हमेशा बेहतर होते हैं। डॉक्टर शरद मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। थैंक यू।